Assalamu alaikum. Today we have 8th lecture for Business Finance MGT 232, and today we are going to start new chapter of bond valuation. Let's have a brief review of the last lecture and the last chapter of time value of money. Well, in the last lecture we studied impact of frequency in present value and present value annuity, that how the compounding and the frequency affect the present value and the present value annuity values, and how do we find that. And we look at this thing, that how the compounding affects the present and the future value. For example, we are going to make changes in two things. The first one is your interest rate, and another one is your number of years. Interest rate changes to I is equals to I over M, and M is number of periods. So your interest rate is directly divided by your number of periods. Then we define it as the interest rate to be used with compounding. Now it depends on your number of periods or the compounding level of compounding you are doing. For example, if you are doing it on annual basis, that means it's 1. You are going to multiply your number of years with 1 and your interest rate divided by 1. Now when we talk about semi-annually, that means we are going to multiply multiply your number of years with 2, and you are going to divide your interest rate with 2. That is I over 2 and the number of years and into 2 ho jayega. Similarly, when we talk about quarterly, that means we are going to use 4 instead of M. Then in case of daily it's 365, and in case of monthly it's 12. So this is how compounding affects the values or the formula or the original present and future values. The only change depends is on interest rate and your number of years. Now we also find out that how we are going to find out the value of interest. If we have the present value, we have the future value, and we know the number of years, then how we are going to find out the interest rate? That means we have to find out I. In that case, what we do is we use the future value formula, simple future value formula, that is future value is equals to present value into 1 plus I power n. And instead of finding the value of interest through other means, what we do is we solve out the formula, and the only thing that is important to be mentioned here is that we take the power. Whatever the power is, for example, if we are taking the number of years as 2, that means in the power we are going to take it as 2 into 1 by 2. In order to have a detail of this, you can refer to my last lecture. You are going to find out the value of interest once you remove the power in your formula. Then in case of finding the value of n, that means number of years. If you don't know the number of years and you have you know what is the future value, what you are going to need in the future, what you have today, and what interest rate it should earn, but for how many years, then you can find out the number of years by using the simple future value formula, that is future value is equals to present value into 1 plus I power n. Now putting in the values, you can solve out through a bit of a mathematical calculation, and then you can use a natural log on both the sides of the equation in order to take that power n into base. So whenever we use algorithm, whatever it is in the power becomes into the base. So we'll change that power n to base, that would be n natural log and then the certain value, and then we can take natural log on both the sides and then the natural log values, and then we can solve out the value of n. This is how we find out the interest rate and number of years in time value of money problems. Then we have amortizing a loan. That means this is very important, one of the very important topic, and the last topic of the chapter of time value of money. Well, amortizing a loan means that you have to amortize a loan in equal payments. Whenever we have to make equal periodic payments, that means in equal periods and equal number of payments, that means it is amortized loan.
or we call it a loan amortization. So whenever we are going to make a certain schedule of how many interest payments we have to make, what amount of interest we have to make, and what is the value of your principal you are going to pay each year, and then how much amount you are remaining, or you have a remaining amount at the end of the whole tenure of the loan. That mark the amortization schedule. आप एक proper schedule बनाते हो जिसके अंदर considering the beginning amount, the principal amount, the payment, the interest rate, and the ending balance of each year. And that becomes the beginning balance of the next year. So this is how the loan amortization schedule is formed. Why loan amortization is used, and what is the application? That we have been studying annuity in the time value of money and compounding. So both annuity and compounding has an application in loan amortization. Loan amortization is the application of annuity and impact of frequency and compounding on the certain practical examples. Now this loan amortization help the banks, the corporations, and the individual as well to find out the exact interest payment, the original payment, and the principal amount. Furthermore, most of the time, because corporations have a large number of interest payments to make, so what they do is they make this amortization schedule in order to know that what interest payment they have to make for the certain years. That is the amount that they are going to include in their net income. So this is how the corporations use it, and similarly it is very useful for the banks and the individual as well. If you are going to take a loan, certain amount of loan, how you are going to do that? You are going to make certain payments. You are going to make certain payments of interest and principal, and then you are going to make a schedule, and you can see that how much interest payment you have to make each year, and how much actual payment or the principal amount you are going to pay each year. Now this marks the end of the time value of money chapter. We completed the chapter in the last lecture, and we had a summary of the whole chapter. Now let's start with the new chapter, that is your bond valuation chapter. Let's look at the bond valuation. What are the topics we are going to cover in bond valuation? The first one is what is a bond. This is very important to know what is a bond. Why do we call it a bond? Then we have different types of bond, different characteristics of bond we are going to study. Most of the bonds have a similar characteristics, and sometimes they are different as well. Then we are going to look at the legal aspects of the bond, that how the bonds are legally being issued, and what are the rights of the corporation, what are the rights of the bond holders and those who are going to buy the bonds, and what are the duties of the corporations who are going to issue the bonds. Then we look at the bond ratings. There are different bond ratings. There are different international and local organizations which are dealing with the rating, which are the rating agencies, and which are dealing with the ratings of the bonds and the corporations and and different firms and companies in different countries. Then we are going to look at the bond valuation. How we are going to find out the value of a bond. This is our actual chapter. How we are going to find out the value of a bond. From today onwards, whatever we are going to study is, we are going to study with the valuation of a long-term securities. Whenever we talk about long-term securities, it means it includes the shares and the bonds. So हम जो भी आगे इससे आगे ये chapter and इससे next chapter और थोड़ा सा आगे जो कुछ पढ़ेंगे, that will be related to the valuation of the long-term securities. So after bond valuation, what is the actual way of finding out the bond valuation? We are going to look at the yields on the bonds, or we can say the return on the bonds. There are two different types of yields, the yield to maturity and yield to call. We are going to look at these things and how we are going to find out the return, and it has a very complex and a long method of finding out these values. Then we are going to look at the current yield, which is a very small and a bit not very important, but a bit related topic to the bond valuation. Now let's look at this thing, how we are going to go into this long-term securities valuation. When I was teaching you in the start, I told you there are three interrelated areas in finance, and we defined financial management. Among those three interrelated areas, we have one financial management. In financial management, when we defined financial management, there were two or three things. The first one was acquisition or investing, and we had financing, and we had management of assets. The first two things, that is investing and financing, investing or acquisition and financing, this is what we are going to focus now. We have
finance, or we have financial management कह दें इसको. This finance has two broad areas. The first one is your investing, the other one is your financing. Now I told you in financing we have 2 or 3 different ways of financing your corporation, or 2 or 3 different ways of going for the financing of the company. अब उसके अंदर जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, दैट मीन्स हमने पहले भी जो बात की थी, वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफरेंट मिक्स, फाइनेंसिंग मिक्स, दैट इज हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द डेट एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द इक्विटी. दिस इज व्हाट वी डिफाइंड और वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट चैप्टर इन आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इट वाज, जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाती है, व्हाट इज द बेस्ट मिक्स ऑफ दिस फाइनेंसिंग. 40-60 रेशियो हमने मैनेज करनी होती है. तो फाइनेंसिंग में हमारे पास बेसिकली टू इंपॉर्टेंट वेज है. द फर्स्ट वन इज योर short-term financing and another one is your long-term financing. Within long-term you have 2 other ways. The long-term has debt financing and equity financing. When we talk about debt financing, that means we are talking about loans or we are talking about bonds. The bonds are basically your debt to the organization, because organizations take them as an asset. So whenever we talk about bonds, तो वो bonds कंपनी के लिए, कंपनी क्या करती है, bonds issue करती है और उनके अगेंस्ट कुछ मनी ले लेती है. वो जो फंड से मनी लेती है वो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अगेन, वो फाइनेंसिंग के लिए लिए जाती है. तो वो एक्चुअल में bonds जो है वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इनटू द डेट फाइनेंसिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी, इट इज शेयर्स. वी आर गोइंग टू इशू शेयर्स. शेयर्स जो है वो आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग में आती है और आपके लोन्स और डेट्स जो है, बॉन्ड्स जो है वो डेट में आते हैं. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फाइनेंस एंड फाइंडिंग आउट व्हाट एक्चुअल कंपनी इज गोइंग टू डू विद व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी इज एक्चुअली गोइंग टू डू. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम the ratio is 40-60 ratio, debt to equity ratio होती है. दिस इज द थ्रेशहोल्ड जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना होता है. बट मोस्ट इट इज द थ्रेशहोल्ड, दैट मीन्स कि भाई 40 से ऊपर गया तो कंपनी के लिए कुछ अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है. 60 से ऊपर गया तो दैट्स ओके, क्योंकि 60 जो है वो उसकी मिनिमम है और डेट की ये मैक्सिमम 40 है. 40 से ज्यादा, 40% से ज्यादा डेट कंपनी को नहीं लेना चाहिए, एल्स it is moving towards the bankruptcy. So 40 और उससे कम, most of the time 40 is the threshold, और इससे पीछे जितनी भी वैल्यू होगी that means it is your this is what defined कि कंपनी ने कितनी डेट फाइनेंसिंग की हुई और जितना कम होता है उतना अच्छा होता है. 30 रेशियो 70 हो सकता है, 20 रेशियो 80 हो सकता है, दैट डिपेंड्स. इक्विटी फाइनेंसिंग ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो ओनर्स को डिफाइन करती है. डेट फाइनेंसिंग मीन्स कि आपने कितना ज्यादा लोन लिया और कितना ज्यादा कंपनी इज रिलाइंग ऑन द डेट फॉर इट्स फाइनेंसिंग. Now this is one of another way of finding out your way of financing. In financing हम देख रहे हैं long term financing में debt में loans हमने देख लिया कि इससे पहले जब हम time value of money में most of the time हमारा focus loans के ऊपर ही था. And it depends on the company and company size as well कि वो बैंक से अगर लोन लाने चाहे तो वो किस तरह का लोन लेगी, किस टाइप का और किस तरीके से लेगी और कितना बड़ा कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ले सकती है. The other way is bond valuation, जो कि most of the time कंपनी प्रेफर करती है क्योंकि उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है. क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है इसीलिए हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम लोन कंसिडर कर रहे होते हैं. तो वो आपकी बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंपनीज रिलाई करती हैं. Now let's look at this thing, what is a bond and how do we define it. The bond is a long-term debt instrument issued by a corporation or a government. Simple सी definition ये है कि it's a debt instrument जो कि most of the time आपकी गवर्नमेंट या corporations issue करती है. आपने देखा होगा कि देयर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज वेल जो गवर्नमेंट इशू कर रही होती है. इसके बारे में आप सबने बहुत सुना होगा. इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स स्टेट बैंक जो कि बॉन्ड्स इशू करता है थ्रू नेशनल बैंक है जिसके पास आपके कुछ बॉन्ड्स पड़े होते हैं जिनके लिए आप खरीद लो 3 मंथ्स के टेन्योर, 6 मंथ्स के टेन्योर के बाद और उसके बाद आपको बॉन्ड निकलता है. वो एक बिल्कुल गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अलग प्रोसेस होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेशंस, तो इट इज एक्चुअली द वे ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द कॉर्पोरेशंस. सो we call it a long-term debt instrument. A long-term debt instrument means कि वो debt instrument इसमें interest payments होने वाली हैं, fixed interest payments होती हैं. Then we define bond valuation in a detail. If we define it, so it's a bond is a long-term contract under which borrower agrees to make payments of interest and principal on specific dates to the bondholder.
तो इसमें क्या होता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. बॉन्ड जो है वो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है विच under which which allows the borrower to agree to make equal payments of interest and principal. अब equal payments इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेमेंट्स होती है वो इक्वल पेमेंट्स होती है, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हो. ऑन स्पेसिफिक डेट्स आपकी डेट्स मेंशन होती हैं टू द बॉन्ड होल्डर. एक चीज देख लें कि आपका बॉन्ड होता कैसे. व्हेन वी सिंपली डिफाइन बॉन्ड, so it is actually a simple piece of paper. अब क्या होता है, इस पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, ABC कंपनी, लेट्स सपोज 20 इयर्स मेच्योरिटी के साथ इशू कर रहे होते बॉन्ड्स, और 1000 लेट्स सपोज 1000 रुपीज का एक बॉन्ड है पर बॉन्ड, एंड सो मेनी थिंग्स. ये 1000 इधर भी लिखा होता है 1000, जैसे पैसे आपके होते हैं तो पैसे भी एक प्रोमिसरी नोट काइंड ऑफ अ थिंग ही है. तो जो मनी है दैट्स काइंड ऑफ अ नोट, तो वो इसीलिए नोट कहते हैं. इसीलिए बॉन्ड्स में आपका काइंड ऑफ अ नोट ही होता है जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर इसके साथ एक इंडेंचर और बहुत सारी बुक्स और विद रूल्स एंड रेगुलेशंस आती है, बहुत सारी चीजें जो कि इनको डिफाइन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं. सो दिस इज व्हाट योर बॉन्ड इज. इस तरह से आपका बॉन्ड डिफाइन होता है. अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि बॉन्ड्स इशू किस तरीके से किए जाते हैं, तो वी हैव अ बॉन्ड होल्डर एंड वी हैव borrower. borrower वो है जो कि बॉन्ड इशू कर रहा है. that borrower can be a household, a government organization or any other corporation. now the process किस तरीके से होता है, ये basically the bond holders are the investors. We have basically two different parties. The one of them is bondholder and another one is borrower. Now bondholder is basically an investor who wants to invest his money, his or her money, to the corporation, in the corporation's shares or bonds, or किसी भी किस्म की चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. Now let's suppose अगर कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स इशू करिए तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एज कम्पेयर टू शेयर्स इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं और दे आर बैक्ड बाय कॉर्पोरेशंस. तो कॉर्पोरेशंस की रेटिंग और इस तरह की चीजें देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रिस्क ऑफ कोर्स रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क इज देयर. अब बॉन्ड होल्डर क्या करता है कि दे आर द इन्वेस्टर्स एंड दे आर द वन हु हैव मनी, or who have funds, and borrower are the people who need money, and they are most of the time your corporations. Bond holder is going to give funds or money to the borrowers or the corporations. These borrowers or the corporations are going to give bonds in return to the bond holder. Plus अब देखिए, एक हाथ से तो बॉन्ड होल्डर ने पैसे दे दिए, बॉन्ड ले लिया, वो बॉन्ड पीस ऑफ पेपर उनकी किस फायदे का, until unless they are going to earn something on that. तो जो उन्होंने मनी दिया है उसके रिटर्न में, वो जो पैसे फंड्स उन्होंने इन्वेस्ट किए उनके रिटर्न में उनको सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर बॉन्ड नहीं मिल रहा होता. वो बॉन्ड जो है एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि yes they have invested such amount to the certain into in a certain corporation or to certain bonds. तो वो उसके इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा होता है, वो जो उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया होता है उनके रिटर्न उनको एक इंटरेस्ट मिल रहा होता है. इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न होता है. तो वो रिटर्न जो है वो कॉर्पोरेशंस आपकी विद टाइम ऑन अ फिक्स्ड पेमेंट विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या स्पेसिफिक डेट, मेच्योरिटी डेट तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न में आपको देते रहते हैं. तो दिस इज द होल प्रोसेस. वी हैव borrower, we have bond holder. Bond holder is going to give funds to the borrower, borrower in return going to give the bonds to the bond holder. What is the benefit of getting a bond or buying this certain kind of a bond is that they are going to get return on this investment which they have done in buying this or buying or purchasing this bond. तो बॉन्ड खरीदते वक्त जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा जो कि फिक्स्ड होता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बॉन्ड वैल्यू. बॉन्ड्स के किस तरीके से बॉन्ड जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी परचेज होती है. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. द फर्स्ट वन इज योर ट्रेजरी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड एंड योर फॉरेन बॉन्ड. द फर्स्ट वन इज योर ट्रेजरी बॉन्ड. ट्रेजरी, जब भी हम ट्रेजरी का नाम कहीं पे भी फाइनेंस में लेंगे दैट ऑटोमेटिकली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो भी चीज इशू करती है उसको हम ट्रेजरी कह देते हैं. तो ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट
so every bond or everything that is being issued by the government is with the name of treasury. So treasury bond means bond issued by the government and it has no default risk. क्यों? क्योंकि उसके पीछे it is backed by the government. Government आपकी change हो जाएगी तो आपको कुछ amount मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी आप गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी उसके बावजूद जो नई गवर्नमेंट आएगी दैट इज लायबल टू मेक योर पेमेंट्स. लेकिन कभी ये नहीं होता क्योंकि वो बैक बाय गवर्नमेंट होता है तो उसमें ये नहीं होता कि कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता कि आपने एक दफा पैसे दे दिए और वो बस ये डूब गया पैसा आपका. ऐसा नहीं होता. अगर गवर्नमेंट चेंज होगी, इवन जब इन केस ऑफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाते हैं और कोई चीजें होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और चीजें चेंज होती हैं, पर गवर्नमेंट ने पैसा लिया होता है. दैट मीन्स जो भी पैसा जनरल पब्लिक से लिया गया है इन अगेंस्ट दिस इशूइंग द बॉन्ड्स, तो वो आपके किसी सर्टेन अकाउंट में क्या होता है जिससे आगे इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, या वो जो पैसे बढ़ते हैं तो वो किसी को दे दिए जाते हैं. Next we have corporate bonds. Corporate bonds are the bonds which are issued by the corporations, the large organizations or the firms जिसके बारे में हम पूरा टाइम बिजनेस फाइनेंस में बात करते रहे हैं और करेंगे. तो आपकी जितनी भी कॉर्पोरेशंस जो भी बॉन्ड्स इशू करते हैं उन्हें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं. इसीलिए वो बेसिकली जो अभी हम जो प्रोसेस होल प्रोसेस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया दैट इज योर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का प्रोसेस होता है. और गवर्नमेंट के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट के केस में डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता क्योंकि वो दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन देयर इज अ डिफॉल्ट रिस्क. वाई? आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी कंपनी के अंदर और वो कंपनी जो है बाद में बैंकरप्ट हो जाती है. द इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन मेड इनटू द कॉर्पोरेशंस बॉन्ड आर बेसिकली those are the investments which are going to be used by the corporations as financing. So वो उसमें let's suppose अगर कंपनी जो है वो bankrupt भी कर गई है तो in that case what you have is your risk. So there is a default risk involved in spending or investing your amount into the corporations. The next we have is municipal bonds. It is issued by basically the state or the local government and it has a default risk but very low interest rate. इसका बेनिफिट ये होता है कि whenever you are going to invest into a municipal bonds जो कि एक स्पेसिफिक स्टेट या लोकल गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए गए हैं तो उसको हम म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कह देते हैं. इन केस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर इस तरह के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू नहीं किए जाते, बट इन केस इसका जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है या बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं दे डू इशू द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. उनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के अंदर डिफरेंट म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं. दैट म्यूनिसिपल कमेटी इशू द दीज लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और आप जिस सिटी के रेजिडेंट या जिस स्टेट के रेजिडेंट हैं और उसी स्टेट की म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो बॉन्ड्स इशू कर रही है तो आपके फेडरल एंड अदर स्टेट टैक्सेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. वो स्टेट टैक्सेस आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं देने पड़ते. ये इसका एक बेनिफिट है. इट डू हैव अ डिफॉल्ट रिस्क, लेकिन बहुत कम डिफॉल्ट रिस्क होता है क्योंकि दे आर नॉट बीइंग बैक्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. एक लोकल गवर्नमेंट बैक्ट कर रही होती है. एंड इट हैज अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट लो इसलिए रखा जाता है इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स जो है विद इन इंटरेस्ट रेट सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट या सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो उसकी होती है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सके. लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर फोकसिंग ऑन गेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन देयर बॉन्ड्स. अब लोकल गवर्नमेंट वाले के अंदर उतना रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं होता जितना कॉर्पोरेशन के अंदर है, और इसका बिल्कुल नो डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं होता कि वो गवर्नमेंट से बैक्ड हो. ये बिल्कुल बीच में आ जाता है आपके कॉर्पोरेशन और आपके लोकल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के बीच में. तो वहां पे क्या होता है कि आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन. फिर इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन में रिस्क ज्यादा है पर उनके इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है. लेकिन लोकल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि कॉर्पोरेशन में होता है, क्योंकि फिर रिस्क भी उतना नहीं होता जितना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर होता है. सेकेंड वी हैव फॉरेन बॉन्ड्स. Foreign bonds जो हैं they are the kind of a bonds which are being issued by the foreign corporation or the foreign government. For example, if I am living in Pakistan and I want to buy a bond issued by the गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, तो वहाँ के किसी भी गवर्नमेंट ने इशू किए या कोई ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने बॉन्ड्स इशू करती है और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान की नहीं है, दैट इज पाकिस्तान इज नॉट द होस्ट कंट्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन या होस्ट कंट्री ऑफ दैट गवर्नमेंट, तो आपकी जो भी आप बॉन्ड्स खरीदोगे वो सारे के सारे आपके फॉरेन बॉन्ड्स होंगे. इसी में एक एग्जांपल आ जाती है यूरो बॉन्ड्स की. यूरो बॉन्ड्स भी इसी तरीके के हैं कि आपकी जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपकी करेंसी और आपकी यू आर नॉट द रेजिडेंट और द होस्ट ऑफ दैट कंट्री, जो कि जिस कंट्री से आपकी कंपनी बॉन्ड्स है. लेट्स सपोज कंपनी अगर ने एक इशू किया जी, लेट्स सपोज यूएसए में एक बॉन्ड इशू किया गया, आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी होते हुए जब यूएसए का बॉन्ड खरीदोगे तो आपके लिए यूरो बॉन्ड है या वो आपके लिए एक फॉरेन बॉन्ड है.
अब इसमें जो करेंसी इन्वॉल्व होती है वो डॉलर में, क्योंकि यूएसए में इशू किया गया तो डॉलर में है, लेट्स सपोज डॉलर में अमाउंट है, वो जो डॉलर में अमाउंट है दैट इज अ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपका कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। पहली चीज तो ये कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, यू डोंट नो द गवर्नमेंट या उधर की पॉलिसीज, उधर के रूल्स एंड रेगुलेशन इन डिफरेंट कंट्रीज क्या है। प्लस अगर वो आप फॉरेन कॉर्पोरेशन के ले रहे हो तो डेफिनेट रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी और कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट आर द कंडीशंस और किस तरीके से वो अपना एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, और आप ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट कर लें, ऐसी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट कर लें जो कि बाद में बैंकरप्ट हो जाए, तो डिफॉल्ट रिस्क इज देयर। देन डिफॉल्ट रिस्क के साथ साथ इसमें एक करेंसी रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। व्हाई वी डू कॉल इट करेंसी रिस्क, क्योंकि आपने लेट्स सपोज पाकिस्तानी रुपये को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में और फिर आप ऐसा कोई बॉन्ड खरीदेंगे जो कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड है। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड जब आप खरीदोगे डॉलर्स में और वो आपने पाकिस्तानी रुपये को चेंज किया ना, लेट्स सपोज व्हेन आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा होगा, तो रिटर्न आप अर्न करने लगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो हो सकता है जितना पहले आपके डॉलर की वैल्यू थी अगेंस्ट रुपी, हो सकता है वो कम हो गई हो। वैसे तो इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, लेकिन कभी ऐसी भी तो किसी जगह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जो अगेंस्ट पाकिस्तान आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी अमाउंट जो है वो कम हो गई है। तो लेट्स सपोज $1 इज इक्वल्स टू या ₹1 इज इक्वल्स टू $1, तो वो कम हो गया, लेट्स सपोज ₹1 इज इक्वल्स टू $0.5 हो गया। तो दैट मीन्स कि आपने जितना भी रिटर्न अर्न करोगे वो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आने का, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आते हैं आपकी करेंसीज की वैल्यूज के अंदर, वो अफेक्ट करते हैं आपकी फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर को। फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट यही कि आपने जी इन्वेस्ट किया और वो अमाउंट जब आपने अभी ले लिया और उसके बाद जब आप इंटरेस्ट अर्न करते हो सकता है कि जितनी ज्यादा आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाली हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न ना मिले, और ड्यू टू चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है डिफरेंट करेंसीज के बीच में, और उसकी वजह से आपके अंदर इधर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी रिस्क। Now that was all about your types of bonds. There are two more types of bonds जो कि zero coupon bond and coupon bond है, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। The first thing we are going to look at is your characteristics of bonds. Okay, the first thing is we have the bonds coupon rate is the which is the stated rate of interest, or we call it a coupon interest rate. इसको coupon interest rate भी कहते हैं। It is the actual fixed interest rate. Fixed interest rate or the stated interest rate that is being issued by the organizations, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट बता दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बता देती है कि इस बॉन्ड के ऊपर इतना फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेंगे, लेट्स सपोज 10%। तो 20 इयर्स के लिए अगर बॉन्ड इशू किया गया तो 10% हर साल आपको एनुअल बेसिस पे मिलता रहेगा। सेमी एनुअल है तो साल में 2 दफा मिलता रहेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, वो किस तरीके से आपका कूपन इंटरेस्ट रेट रखता है, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट। के मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है कि कोई आपका खरीदेगा या कोई और आपका इन्वेस्टर आपका बॉन्ड खरीदेगा या कहीं और इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि जरा ज्यादा डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी, या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि जरा ज्यादा मेहनत मांगती है आपकी, या उसमें रिटर्न जो है वो उतना नहीं आता जितना कि एक्सपेक्टेड है। दिस इज योर कूपन इंटरेस्ट रेट। सो नाउ योर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज योर मैच्योरिटी वैल्यू। The maturity value is the par value or the face value of the bond. मतलब बॉन्ड के ऊपर जब मैंने जिस तरीके से बॉन्ड बनाया था, if you look at this thing, you have a bond, जैसे कि पैसों के ऊपर वैल्यू होती है जिसकी हम यहाँ पे लेते हैं 1000 का बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड 1000 का है यहाँ पे बीच में उसकी कंपनी नेम और अदर डिटेल्स लिखी हुई है, मैच्योरिटी डेट लिखी हुई है। ये जो यहाँ पे हमने अमाउंट जिसके ऊपर बॉन्ड इशू किया जाता है, द अमाउंट ऑफ मनी द फर्म बोरोज, the amount of money that firm borrows and promise to make a repayment of that amount on a maturity day. That means कि वो जो अपने ओरिजिनल बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू दी होती 1000 का बॉन्ड इशू किया गया, कंपनी 1000 रुपीज हर एक सिंगल बॉन्ड के ऊपर 1000 रुपीज बोरो करिए, और जब मेच्योरिटी डेट कंप्लीट होगी तो कंपनी जो है वो 1000 रुपीज आपको वापस कर देगी, ठीक है, बॉन्ड होल्डर को। इसका मतलब वो बोरो करी वो अमाउंट और वो अमाउंट वापस आ जाएगी। अब ये जो हम पैसों के ऊपर भी वैल्यू एक देखते हैं, एक सर्टेन अमाउंट लिखी होती है, दिस इज योर फेस वैल्यू। तो जब भी हम बॉन्ड्स की बात करेंगे तो बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा ही है, द मेच्योरिटी वैल्यू इज द पार वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो हम उसको मेच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो इट इज एक्चुअली द स्टेटेड वैल्यू ऑन विच द बॉन्ड इज बीइंग इशूड एंड इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द इन्वेस्टर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड। तो ये आपकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, मेच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू। देन वी हैव द डिस्काउंट रेट, another thing which is
the discount rate, which is the required rate of return, and it is dependent on the risk of a bond and is composed of the risk-free rate plus a premium of the risk. ये जो discount certain discount rate होता है वो आपका required rate होता है या वो market interest rate होता है कि let's suppose opportunity cost जिसको कहते हैं कि market rate of return के सुकत ये investment मैं यहाँ करूँ और ये investment अगर मैं जाके इसी किस्म के same type of instrument के अंदर market में करूँ तो उसके ऊपर मुझे कितना return मिल रहा होगा. That kind of a return is your discount rate or the market rate of return, or we call it a required rate of return, and it depends on the risk of a bond. जितना ज्यादा बॉन्ड का रिस्क होता है या जितनी ज्यादा उसकी रेटिंग कम होती है उतना ज्यादा ही उसके डिस्काउंट वैल्यू कम होती है या डिस्काउंट रेट उसका कम होता है. Another characteristic of the bond is your maturity date. This is very important because whenever we are talking about bond, तो वो bonds या debt instruments हैं जिनकी with a finite period of time, आपकी जो investment होती है वो finite for a certain finite period of time के लिए होती है कि आपने certain number of years के लिए bonds में investment करोगे. Let's suppose bonds have a maturity date of 5 years, 10 years, 25 years, 30 years, and इससे भी ज़्यादा अगर मेच्योरिटी रेट जाती है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनीज कैसी हैं, कितनी लॉन्ग टर्म रेटिंग कितनी है और कितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करना या लॉन्ग टर्म टाइम के लिए वो बोरो करना चाह रहे अमाउंट. 50 इयर्स मैक्सिमम 50 इयर्स तक अब तक जो गई है वो 50 इयर्स तक मेच्योरिटी गई है. इससे भी ज़्यादा 50 इयर्स 60 इयर्स तक भी जा सकते हैं और द लोन काइंड ऑफ लोन जो भी इशू किया जाता है. अब मेच्योरिटी डेट जो है वो स्पेसिफिक डेट होती है जिसके ऊपर बॉन्ड इज गोइंग टू बी मेच्योर और आपकी जो ओरिजिनल पार वैल्यू इज गोइंग टू बी रीपेड. So the bond have a specified maturity date on which the par value is going to be repaid. That is your maturity date. Let's suppose if I say that I'm going to issue a bond that has a maturity date of 20 years. That means it has a maturity date of 20 years. 20 years के लिए bond is being issued for 20 years. Bond is being issued for 30 years. This is its maturity date. कि जब भी आपका bond पूरा mature हो जाएगा और आपको अपनी certain par value वापस मिल जाएगी. Another characteristic of bonds is the provisions to call or redeem the bonds. Now this is very important. इसमें कुछ बहुत सारी चीजें involved होती है. First thing is provisions to call का मतलब क्या. अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कोशिश ये होती है वो किसी ना किसी तरीके से अपने बॉन्ड्स को या अपनी जो भी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए अपने बॉन्ड्स अपने शेयर्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए सो दैट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन देयर कंपनीज. और अब जब बॉन्ड्स की बात आती है तो क्योंकि उन्होंने बोरो करनी होती है अमाउंट तो वो अपने ज़्यादा अच्छे से अच्छे बॉन्ड्स या बॉन्ड्स के साथ सर्टन लीगल राइट्स या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स रख देते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है. The provisions to call का मतलब ये है कि कंपनी bonds has certain call right. जो call कंपनी जो है उसके पास एक certain right होता है. Corporation has a right to redeem the bonds, to call the bonds. अब इसमें ये है कि let's suppose अगर 30 years के लिए bond issue किया गया है और कंपनी ये कह देती है कि आफ्टर 10 years कंपनी इज गोइंग टू कॉल द बॉन्ड्स. दैट मींस कि लेट्स सपोज मैंने आपसे कोई इन्वेस्टमेंट ली है, सारे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी. वो इन्वेस्टमेंट मैंने जाके किसी प्रोजेक्ट में लगा दी. उस प्रोजेक्ट से जो मुझे अर्निंग्स हो रही है उन अर्निंग्स की बेसिस पे इंटरेस्ट रिटर्न दिया जा रहा होता है. वो जो इंटरेस्ट रिटर्न होता है या वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आती है जो एज प्रॉफिट अर्न किया जा रहा होता है कंपनीज के केस में. तो कंपनीज क्या करेंगे उसको एक्यूमुलेट करते 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 अब कंपनी को ये जो उसकी प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू दैट उनको ये लगता है कि जी 10 साल के अंदर अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स के जो रिटर्न्स हैं उनको या गोल्स हैं उनको अचीव कर लेंगे. तो 10 बॉन्ड उन्होंने इशू किया 30 इयर्स के लिए. दैट मीन्स कि 30 इयर्स के लिए वो आपसे पैसे ले रहे हैं. वो जाके इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी किसी प्रोजेक्ट के अंदर. प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आना शुरू हुए वो कंपनी के प्लान्स के मुताबिक अभी होता ही है कि 10 साल के अंदर अंदर कंपनी जो है अपनी प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट जो है वो रिटर्न कर लेती है. प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट इतना प्रॉफिट हो गया कि वो ओरिजिनल अमाउंट पे कर लेती है अर्न और साथ अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न कर लेती है. जब ऐसा कोई केस होता है तो कंपनीज ने पहले से अपने बॉन्ड्स के अंदर एक कॉल राइट रखा होता है और प्रोविजंस टू कॉल होते हैं कि कंपनी किसी भी टाइम बॉन्ड्स को किसी भी टाइम के स्पेसिफिक एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स होते हैं उन नंबर ऑफ इयर्स के अंदर अंदर या उस सर्टेन डेट के ऊपर कंपनी इज गोइंग टू कॉल द बॉन्ड और बॉन्ड कॉल किए जाते हैं. दैट मींस जितने भी बॉन्ड होल्डर हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ढेर बॉन्ड होल्डर्स, वो सारे के सारे बॉन्ड होल्डर्स क्या करेंगे आके अपने बॉन्ड्स वापस कर देंगे और जो ओरिजिनल अमाउंट जिसके ऊपर बॉन्ड इशू किया गया था वो पैसे वापस कर देंगे. अब लेट्स सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 30 इयर्स के बॉन्ड में. दैट मीन्स कि मुझे 30 इयर्स तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा.
कंपनी ने 10 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट वापस कर दी है, इसका मतलब ये है कि मुझे 20 साल तक मुझे इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिला, मुझे सिर्फ 10 साल तक मिला। 30 टोटल 30 इयर्स थे, 10 साल तक इंटरेस्ट मिला, 10 साल बाद बॉन्ड्स वापस ले लिए और बाकी 20 साल की इन्वेस्टमेंट क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी, दोबारा से रिस्क इन्वॉल्व होगा, दोबारा रिस्क। इसके लिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी एक सर्टन परसेंटेज ऊपर देती है आपको पार वैल्यू के लिए। लेट्स सपोज आपने बॉन्ड इशू किया गया था 1000 रुपीज, आपने बॉन्ड खरीदा 1000 रुपीज का 30 इयर्स मेच्योरिटी के साथ। 10 साल के बाद कंपनी बॉन्ड इशू रिकॉल कर लेती है। जब कंपनी बॉन्ड को कॉल करती है तो आपको 1000 रुपीज जिसपे उसने बॉन्ड खरीदा था आपसे, वो बॉन्ड अपना बॉन्ड वापस लेंगे, 1000 रुपीज आपको दे देगी। लेकिन मुझे 20 इयर्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी थी जिसमें इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा, उसके लिए कंपनी कंपनसेट करती है। कंपनसेट क्या करती है? कंपनसेट करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉल प्रीमियम। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जितनी भी, लेट्स सपोज 1000 का बॉन्ड इशू क्या होता है, 1000 भी आपको वापस करेगी, 1000 के साथ एक सर्टेन अमाउंट ऊपर और पे कर देगी। लेट्स सपोज हम वी से दैट कि इसकी कंपनी जो है वो 4% ऑफ जो ओरिजिनल अमाउंट है वो रीपे की जा रही है। 4% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट रीपे करने का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो 1000 का 4% इज 40, 1040 आपके बॉन्ड होल्डर्स को वापस कर लिए। 10 साल में बॉन्ड कॉल किए गए, 30 इयर्स के लिए इशू किए गए थे, जिनमें से 10 साल के अंदर बॉन्ड्स कॉल कर लिए। कॉल करने का मतलब ये है कि 1000 में बॉन्ड खरीदा गया तो 1000 की वैल्यू प्लस ऊपर 40 रुपीज एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज दिए जाते हैं उसको कॉल प्रीमियम कहा जाता है, और 1040 जो है उसको कॉल प्राइस कहा जाता है। लेट्स सपोज 30 इयर्स के बॉन्ड थे, कॉलेबल इन 10 years. आफ्टर 10 years 1000 रुपीज के बॉन्ड खरीदा गया था। आफ्टर 10 years कंपनी जो है बॉन्ड इशू कॉल करती है। कॉल करने के बाद इसको हम कहते हैं कॉल प्रोविजंस टू कॉल। तो कंपनी के पास एक सर्टेन राइट होता है टू कॉल द बॉन्ड्स। तो आफ्टर 10 years जो है कंपनी जब बॉन्ड इशू कॉल करती है तो आपको 1000 तो देगी प्लस एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऊपर देगी। लेट्स सपोज 4% ऑफ दिस अमाउंट, तो वो 40 बनता है, तो 40 एक्स्ट्रा दे दिए, 1040। ये 1040 जो है दिस इज योर कॉल प्राइस, और ये जो एक्स्ट्रा 40 अमाउंट ऊपर दी गई है दिस इज योर कॉल प्रीमियम। सो दिस 40 इज योर कॉल प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऊपर पे की जाती है। द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज बीइंग पेड व्हेन बॉन्ड्स आर बीइंग कॉलेबल, दिस इज कॉल्ड कॉल प्रीमियम। एंड द प्राइस द टोटल ओवरऑल प्राइस दैट इज बीइंग पेड अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉल्ड योर कॉल प्राइस, यानी कि 1040 इज योर कॉल प्राइस, और ये जो 1000 होता है दिस इज योर मेच्योरिटी और द पार वैल्यू जिसके ऊपर बॉन्ड इशू किया गया होता है। Now we have deferred call और call protection. अब deferred call का मतलब क्या है? Deferred call का मतलब ये है कि for example if a company has to issue the bonds after 10 years, have to call the bonds after 10 years. So 10 years के बाद अगर कंपनी ने बॉन्ड इशू करना है, कॉल करने हैं, और कंपनी कॉल नहीं करती बॉन्ड्स टिल 15 years 20 years और उसकी पूरी मेच्योरिटी 30 years तक कंपनी अगर बॉन्ड्स कॉल नहीं करती तो हम उसको डेफर्ड कॉल कहते हैं। दैट मीन्स वो कॉल जो है वो डिले हो गई है एंड इट इज बीइंग डेफर्ड कॉल, वो कॉल नहीं किए जाएंगे और ना आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, ना ही आपसे अमाउंट ओरिजिनल वापस ली जाएगी। बिसाइड दैट डेफर्ड कॉल के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि व्हेन द बॉन्ड्स आर बीइंग डेफर्ड या द कॉल इज बीइंग डेफर्ड, इट्स अ डेफर्ड कॉल एंड द बॉन्ड होल्डर्स आर सेट टू हैव कॉल प्रोटेक्शन। दे आर कॉल, उनके पास कॉल प्रोटेक्शन थी कि उनकी बॉन्ड्स को कॉल कर लिया जाए, पर वो डेफर्ड हो गई तो इट्स अ कॉल प्रोटेक्शन। आपके बॉन्ड होल्डर्स के पास कॉल प्रोटेक्शन आ गई, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कॉल जो कि कंपनी ने करनी थी। ये तो आ गया कंपनी का राइट, जो प्रोविजंस टू कॉल में कि कंपनी के पास एक सर्टेन प्रोविजन, एक सर्टेन राइट होता है कि दे कैन कॉल द बॉन्ड्स एट सर्टेन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ एक चीज होती है जिसे हम कॉल रिडेम्पशन कहते हैं। कॉल रिडेम्पशन जो है वो बॉन्ड होल्डर्स का पास एक राइट होता है। इट इज द राइट ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स, इट इज द राइट ऑफ बॉन्ड होल्डर्स टू रिटर्न bonds before maturity. So the call redemption is the right of a bond holders to return the bonds before maturity. तो maturity से पहले अगर let's suppose मैं हूँ और मेरे पास बॉन्ड था जो कि 30 years जिसकी maturity थी, मैं
30 इयर्स का वेट करने के बजाय 10 साल या 12 साल 15 साल बाद मेरा ये डिसीजन हुआ है कि आफ्टर 15 इयर्स जो कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे रही है वो 10% इंटरेस्ट दे रही है, और उस 10% इंटरेस्ट के साथ ये है कि मार्केट में अगर वही इन्वेस्टमेंट जो मैंने कंपनी के अंदर 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की, वही 1000 में अगर कंपनी कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो वो जो कहीं और मैंने इन्वेस्टमेंट की है, दैट इन्वेस्टमेंट इज वो उससे शायद जरा ज्यादा रिटर्न आ रहा होगा। मुझे कंपनी 10% दे रही है, यही मैं मार्केट में जाके इन्वेस्ट यही अमाउंट कर दूं तो मुझे 12% रिटर्न मिल रहा होगा। तो जब मैं ऐसा देखती हूँ कि 10% एक जगह मैंने वही इन्वेस्टमेंट की हुई और 10% रिटर्न आ रहा है, दूसरी जगह मैं वही इन्वेस्टमेंट करूँ और मुझे 12% रिटर्न आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट वहां इन्वेस्ट करनी चाहिए ना जहां से मुझे रिटर्न ज्यादा आ रहा है, जहां 12% आ रहा है। तो मेरे पास अगर ये राइट है, कॉल रिडेम्पशन का राइट है एज बॉन्ड होल्डर, तो मैं क्या करूंगी, अपना बॉन्ड जाके कंपनी को वापस करूंगी और अपने उसी इन्वेस्टमेंट को जाके किसी और जगह इन्वेस्ट करके आपको अपना ज्यादा रिटर्न अर्न करूंगी। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द केसेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट और द वोलेटिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट, जो है वो ये इस किस्म की चीजें वो कॉज करता है कि एक जगह से कम इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा आ रहा हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉल रिडेम्पशन, तो कॉल रिडेम्पशन का मतलब ही ये होता है कि बॉन्ड होल्डर्स के पास राइट होता है वो कभी भी अपने बॉन्ड्स को रिडीम कर सकते हैं। सो बॉन्ड्स आर रिडीमेबल। अब ये वाला ऑप्शन कंपनीज पे डिपेंड करता है वो साथ रखें कि ना रखें। अगर कंपनीज कहती है कि बॉन्ड्स आर कॉलेबल एंड बॉन्ड्स आर रिडीमेबल, दैट मींस कंपनी जो है वो किसी भी टाइम अलाउ करती है कि जो भी बॉन्ड होल्डर कभी भी अपना अगर बॉन्ड वापस करना चाहे तो वो किसी भी टाइम अपना बॉन्ड आके वापस करके अपनी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट लेके जा सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं होल्ड कर सकता है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एज वेल कि आपकी वो जो कंपनी अपना इंडेंचर या जो भी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मेंशन ये चीज की जाती है जब भी रिडीमेबल का ऑप्शन दिया जाता है कि या तो ओरिजिनल अमाउंट जिसके ऊपर बॉन्ड खरीदा गया था वो ओरिजिनल अमाउंट बॉन्ड होल्डर को वापस कर दी जाएगी। लेट्स सपोज 1000 में खरीदा गया तो 1000, या फिर उससे कुछ अमाउंट कम, क्योंकि इसमें कंपनी का नुकसान है कि उससे किसी भी बीच में आके कोई भी अमाउंट जो है ले, और बहुत कम ऐसा होता है कि कंपनी जो है बहुत कम ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो अपने बॉन्ड्स के ऊपर रिडीमेबल का ऑप्शन रखें, क्योंकि किसी भी टाइम कंपनी जो है वो बॉन्ड को कॉल कर सकती है। कॉल रिडेम्पशन का ऑप्शन हो तो कंपनी को बॉन्ड्स जो है वो रिडीम करने पड़ सकते हैं। अब बॉन्ड्स रिडीम करने पे जाहिर बात उनको अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं है कि हर कंपनी इस चीज को अलाउ करे कि वो अपने सारी सर्टेन अमाउंट वापस करे, तो हो सकता है किसी कम सर्टेन अमाउंट के ऊपर बॉन्ड वापस कर दिया जाता है। The next characteristic we have is the convertible bonds. Convertible bonds mean that bonds has certain options. The bondholders has an option of converting their bonds into shares at a certain fixed price. तो वो fixed price मेंशन कर दी जाती है और बॉन्ड होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि कभी भी आप अगर अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा तब होता है जब आपकी शेयर प्राइस बहुत अच्छी या इंक्रीज जा रही हो। सिमिलरली वी हैव बॉन्ड्स विद परचेज वारंट्स। परचेज वारंट्स या स्टॉक वारंट्स का मतलब ही इसका भी सेम कन्वर्टेबल्स की तरह ही होता है कि कभी भी कंपनी अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर, बॉन्ड होल्डर जो है वो कभी भी अपने बॉन्ड्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जी एक बॉन्ड है तो वो 2 नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर आप उसको चेंज कर लेते हो। तो आप अगर 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 शेयर्स, तो 2 शेयर्स आप खरीद लेते हो। लेकिन आप इससे पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्टली एक बॉन्ड इज इक्वल टू 1 शेयर्स उसमें कन्वर्ट हो गया, और उस पर लेकिन जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपके उन शेयर्स के ऊपर या जो भी प्राइस होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स। तो और जो परचेज वारंट्स के साथ आते हैं वो सर्टेन वारंट होता है कि दैट मीन्स कि कभी भी कंपनी वो बॉन्ड होल्डर्स जो है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करें टू द स्टॉक। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब स्टॉक प्राइसेस बहुत रोलिंग बहुत अच्छी जा रही होती है, बॉन्ड होल्डर्स जो है वो प्रेफर करते हैं बिकमिंग द शेयर होल्डर इंस्टेड ऑफ बीइंग द बॉन्ड होल्डर। Then we have income bond. Income bond is the bond which gives you interest or the income only when the company earned the interest. For example, अगर कंपनी ने कहीं आपसे इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्ट कर दिया है और वो अमाउंट उसको रिटर्न में कोई इंटरेस्ट अर्न हुआ तभी वो आपको देगी। लेट्स सपोज अगर कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो वो आपको नहीं देगी। सो दिस इज योर इनकम बॉन्ड, और ये बहुत डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर ही कि कंपनी ऐसे बॉन्ड इशू करे या ना करे, और ये बहुत कम होते हैं। सो दिस इज अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहले भी हम कुछ डिफाइन कर चुके हैं, कुछ और थोड़ी कूपन इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड करती हुई कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। दैट मींस इट इज अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड दैट पेइंग इट इज अ कूपन पेइंग बॉन्ड विद अ फिनाइट लाइफ। दैट नॉन जीरो मींस के कुछ बिल्कुल जीरो कुछ नहीं होता, समथिंग सम अमाउंट ऑफ बॉन्ड होता है, इसको हम सिंपल कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। सो बॉन्ड कूपन बॉन्ड इज अ कूपन पेइंग बॉन्ड विद अ फिनाइट लाइफ। एक सर्टेन फिनाइट लाइफ होती है कि जी 30 ईयर्स 20 ईयर्स 10 ईयर्स इतनी मेच्योरिटी है और इतना नंबर ऑफ परसेंटेज कूपन इंटरेस्ट मिलेगा। लेट्स सपोज इफ वी मेक अ टाइमलाइन ऑफ दिस, वी हैव लेट्स सपोज वी हैव 10 years in between,
और इन 10 years के अंदर आपके पास आज लेट्स सपोज 1000 की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वो आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो ईयर 1 2 हर साल 10% का इंटरेस्ट, फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टिल 10 years आपको रहेगी। वो 10 years तक आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको लेट्स सपोज 100 हो गई, तो 100 का इंटरेस्ट पेमेंट आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट हर साल मिलता रहेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड दैट पेज नो इंटरेस्ट रेट, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया जाए, बट सेल एट अ डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। लेट्स सपोज अब इसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू कितनी थी 1000, लेकिन जब इस बॉन्ड को खरीदा जाता है ना, तो ये बॉन्ड खरीदा जाएगा जी लेट्स सपोज 800, तो वो जो है तो बॉन्ड ये भी 10 साल के लिए या 10 साल या उससे भी ज्यादा के लिए, तो वो एक सर्टेन डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा रहा है। लेट्स सपोज कंपनी, कोई और कंपनी अगर बॉन्ड इशू करी है जिसने कूपन बॉन्ड इशू किया, वो अगर 1000 का है तो ये आपका 100 का मिल रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई वो नहीं होते, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, यहाँ पे कोई जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, कोई परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो डीप अब 800 है, इसी तरह ये अमाउंट आपको करते करते कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड होती है, वो कोई परसेंटेज रिटर्न के साथ नहीं होती, फिक्स्ड होती है, और वो एट द एंड आपकी एक्यूमुलेट होकर कुछ टोटल वैल्यू बन जाती है। दिस इज योर जीरो कूपन इंटरेस्ट रेट, जिसका इंटरेस्ट रेट आपका जीरो होता है, एंड इट सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से थोड़ा डिस्काउंट पे सेल आउट होता है। नाउ लेट्स लुक एट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉन्ड्स। ये आपके करेक्टरिस्टिक्स थे और उन पे बेस्ड आपकी टाइप्स थी। लेट्स लुक एट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉन्ड्स। लीगल एस्पेक्ट्स में आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंडेंचर एंड अनदर वन इज योर ट्रस्टी। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडेंचर, इंडेंचर इज a document with the bond. An indenture is normally a bank or organization or institute which is most of the time set by the Security and Exchange Commission of that country. For example, in case of Pakistan, it would be Security and Exchange Commission of Pakistan. So a document with a bond. अब इंडेंचर जो है, अब मैं जब ये कह रही हूँ कि जी एक सर्टेन बॉन्ड मैंने इशू किया, उसके साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके अंदर होते हैं बॉन्ड होल्डर्स की डिटेल्स, कॉर्पोरेशन की डिटेल, क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या वो बॉन्ड इनकम बॉन्ड है, क्या उस बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है, क्या उसमें क्या वो बॉन्ड्स कॉलेबल है, क्या उसमें रिडीम का ऑप्शन है, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है सब इंडेंचर के अंदर लिखी होती है। इंडेंचर जो है दैट इट स्टेट्स Indenture states the rights of the bondholders and also it states the duties of the issuing organization or the duties of the issuer. तो वो इंडेंचर होता है। तो when we talk about the trustee, trustee को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? It is a watchdog which makes sure that rules in indenture are being met. Are being followed by the organization. तो वो एक काइंड ऑफ अ वॉच डॉग है जो कि ये देख रहा होता है कि आपकी कोई भी बैंक हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी एजेंसी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि आपके स्टेट की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है या आपकी कंट्री की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन बैंक को कहा होता है कि एक सर्टन नंबर ऑफ इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की इतनी नंबर ऑफ कंपनीज आपने देखनी है। तो उसमें ये देखा जाता है कि जब बॉन्ड्स इशू कर दिए उसके इंडेंचर में क्या चीजें थी, ये कि जी राइट क्या है बॉन्ड होल्डर्स के, उनकी ड्यूटीज क्या है, कितनी नंबर ऑफ मेच्योरिटी है, कितने नंबर ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, ये सब चीजें लिखी होती है। इसके अंदर ये सब चीजें जो है फॉलो करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन ने। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चीज फॉलो ना करे तो ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो सकती है और उसके लिए उसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉ सूट्स भी हो सकते हैं। जो इन सब चीजों का ख्याल कौन रखता है? ट्रस्टी की। क्या वाकई ऑर्गेनाइजेशन जो इंडेंचर में चीजें उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही? तो ये एक अनदर लीगल एस्पेक्ट है ऑफ द बॉन्ड्स जिसमें इंडेंचर एंड ट्रस्टी की बात की जाती है। देन वी हैव डिफरेंट बॉन्ड रेटिंग्स। अब जब भी हम बॉन्ड रेटिंग्स की बात करते हैं तो इससे पहले मैं बताती रही हूँ कि रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क अकॉर्डिंगली आप जितना ज्यादा रेटिंग होती है उतना ज्यादा कम रिस्क होता है, जितनी कम रेटिंग होती है उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो दैट डिपेंड्स। तो बॉन्ड्स आर गिवन रेटिंग्स टू रिफ्लेक्ट देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू डिफॉल्ट और गोइंग बैंकरप्ट। तो वो बॉन्ड्स जो है उनको रेटिंग इसलिए दी जाती है कि देखा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर देंगे, इस कंपनी के बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर देंगे। अब कंपनी डिफॉल्ट कर जाए या कंपनी के बैंक डिफॉल्ट कर जाए, इसका मतलब क्या है कि
आप जब उसको रेटिंग देते हो, लेट्स सपोज वी हैव अ वेरी गुड रेटिंग ऑफ 1, दैट मीन्स कि 1 टॉप नंबर 1 पे जा रही है। अब वही कंपनी है, उसी तरह की कोई भी कंपनी है जो कि बॉन्ड्स जिसने बॉन्ड इशू किए गए हैं, अब उसकी रेटिंग अगर जा रही है 10, आपकी रेटिंग जा रही है 1, तो वो 10 का मतलब ये है कि दैट कंपनी जो है वो बिल्कुल ही परसेंटेज उसका रिटर्न कम है और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है, जितनी बुरी रेटिंग होती है तो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके चांसेस आपके ज्यादा होते हैं डिफॉल्ट में जाने के, और जितनी अच्छी रेटिंग होती है उतने ज्यादा कम चांसेस होते हैं आपके डिफॉल्ट में जाने के, प्लस उसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व होता है। इफ यू लुक एट द टेबल, वी हैव different forms of rating. The first one is your triple A to triple B. This triple A to triple B means it's investment grade bonds. They are high quality. They are high quality bond with the less risk. They are prime. जिनको हम prime या premium quality bonds कहते हैं. They have a very high quality but lower less risk, और इनकी cost जो है वो बड़ी high होती है. High cost होती है इसलिए क्योंकि वो उनमें risk कम involve होता है, उसका return बहुत ज्यादा होता है। तो कॉर्पोरेशन जो है वो नॉर्मली अपने ऐसे बॉन्ड्स, ऐसी रेटिंग्स के साथ वाले जो बॉन्ड्स हैं उनकी कॉस्ट जरा ज्यादा ही रखते हैं। अगर 1000 पे नॉर्मल बॉन्ड इशू हो रहा है तो ये 1050 या 1100 पे इशू हो रहा होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अब ट्रिपल ए किसी भी रेटिंग की, किसी भी चीज की अगर रेटिंग ट्रिपल ए से ट्रिपल बी तक होगी, दैट मींस इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स जो कि बड़े अच्छे होते हैं और उसमें लेस रिस्क होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स विद रेटिंग ऑफ डबल बी टू सिंगल सी, दैट इज स्पेक्युलेटिव बॉन्ड्स। यहाँ हम इसको जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं, जंक बॉन्ड्स। अब जंक बॉन्ड्स से स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स के, इनमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्योंकि इनकी रेटिंग एज कम्पेयर टू वो जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है इनकी रेटिंग थोड़ी कम होती है, एवरेज पे होती है। इस एवरेज का मतलब ये है कि इनकी एक तो इनकी कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि ताकि कम कॉस्ट है, लेट्स सपोज अगर बाकी 1000 के मिल रहा है तो ये शायद 500 का मिल रहा होगा। उसका रीजन क्या है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स के यार इधर कम इन्वेस्टमेंट है चलो कर लेते हैं, इसलिए रखी जाती है कि कम अगर इसकी वैल्यू है तो कंपनी जो है वो डिपेंड करता है कि कंपनी उसको क्या रेटिंग देती है। ठीक है, अब कंपनी की क्या रेटिंग है और किस हिसाब से उसके उसमें रिस्क या उसकी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इन दैट केस आपका रिटर्न इतना हाई नहीं होता, रिस्क आपका बहुत हाई होता है और आपका जो कॉस्ट होती है वो लो होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीद सके। एंड वी हैव स्पेकुलेट एंड वी कॉल देम एज स्पेकुलेटिव और जंक बॉन्ड्स। नाउ व्हेनेवर वी हैव अ रेटिंग ऑफ डी, दैट मींस किसी भी कंपनी को अगर डी की रेटिंग मिल गई दैट मींस दे आर इन डिफॉल्ट। वो या तो डिफॉल्ट होते हैं, बैंकरप्ट हो गए होते हैं या डिफॉल्ट होते हैं। इस तरह जिस तरह भी डिफॉल्ट या बैंकरप्ट जो भी हो, दैट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी की रेटिंग किस कंपनी, ये सर्टेन रेटिंग किस कंपनी को मिली हुई है। तो वो आपके डी मींस इन डिफॉल्ट, इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। इससे आगे मतलब यही है कि यहाँ पे पहुंच के कंपनी जो है डी पे मींस बैंकरप्ट हो गए, डिफॉल्ट हो गए, इसमें नो देयर इज नो वे ऑफ इन्वेस्टिंग और देयर इज नो चांस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी और गेटिंग अ रिटर्न। These bond ratings do affect the stability and the cost. The stability and the cost, what does that mean? That means कि whenever we have a high rating, that means in investment grade bonds की जब हम बात करते हैं तो उनकी जितनी ज़्यादा रेटिंग होती है उनकी, इसका मतलब है the company is stable, the company that is issuing those bonds is stable. आपकी अकॉर्डिंगली कॉस्ट भी उतनी कम, उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा होती है, लेकिन इसका रिस्क हमेशा कम होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स, तो स्पेकुलेटिव बॉन्ड्स का मतलब ये है कि वो बॉन्ड जंक बॉन्ड्स है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अब उनकी रेटिंग कम होती जाती है, जितनी ज्यादा आप कंपनी को रेटिंग देते, जिस भी चीज की जितनी ज्यादा रेटिंग दे रही होते हो उतना ज्यादा उसमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। लेकिन जितनी कम रेटिंग होती जाती है अकॉर्डिंगली उनकी स्टेबलाइजेशन और उनकी जो रिस्क है वो भी रिस्क ज्यादा हो जाता है, स्टेबलाइजेशन कम हो जाती है। सिमिलरली उनकी कॉस्ट भी कम होती है, इसलिए क्योंकि कंपनीज ऑलवेज वांट द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी। अब जब रेटिंग जाहिर बात है कम है तो कंपनी अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या करती है कि उनकी कॉस्ट जो है अपनी मिनिमाइज कर देती है इन अ वे और इन अ सेंस कि आपके इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एक चीज और देखें, इनकी जो जिस तरीके से हमने कहा ट्रिपल ए हो गया या डबल ए हो गया, तो जिस तरह की इनकी रेटिंग्स हैं, व्हेन वी लुक एट दिस, कुछ कंपनीज हैं जो ट्रिपल ए रेटिंग देती हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह से रेटिंग का नाम लिखते हैं A+1 कर देती हैं। सिमिलरली वी हैव ट्रिपल बी, तो इट वुड बी बी कैपिटल बी एंड 2 स्मॉल बी और B+1। सिमिलरली इसी तरह से B- और B इस तरह की रेटिंग दी जाती है। तो वो बॉन्ड जो कि बी ट्रिपल बी पे चल रहे हैं और उससे नेक्स्ट हमारा डबल बी, दैट मीन्स ट्रिपल बी इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, डबल बी इज योर बॉन्ड जो कि बिल्कुल स्पेकुलेटिव बॉन्ड में बिल्कुल थ्रेश होल्ड पे। अब वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना डबल बी में, उनमें कॉस्ट लो है,
उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी डबल बी में, अब बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि डबल बी वुड बिकम ट्रिपल बी। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रहे तो डबल बी से वो ट्रिपल बी में कन्वर्ट हो सकती है उसकी रेटिंग। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स या जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी तरह की करते हैं कि डबल बी में की कि उसकी रिटर्न या उसकी जो रेटिंग है वो चेंज होनी है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज और जो स्पेकुलेशन का थोड़ा बता दें, स्पेकुलेशन में होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज या आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो मिलकर या आपके लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स व्हाट दे डू इज दे डू स्पेकुलेशन, वो इन डिमांड या उनकी डिमांड इंक्रीज कर रहे होते हैं किसी भी चीज की या सप्लाई इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज इफ देयर इज अ न्यूज कि जी इसकी रेटिंग डिक्रीज होने वाली क्योंकि कंपनी में कुछ स्ट्राइक होनी थी, वो जो रेटिंग डिक्रीज होगी दैट इज सर्टेन अमाउंट जो कि आपकी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपकी वैल्यूज के ऊपर, कंपनी की रेटिंग के ऊपर। कंपनी रेटिंग डिक्रीज हुई मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उसके बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देंगे। जब बॉन्ड्स बेचना शुरू करें सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली उसकी रेटिंग और डाउन होगी या उसकी प्राइस और कम होगी। एंड ब्रोकर्स इस टाइम में खरीद लेते हैं ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स, जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती है उनको बेच के स्पेकुलेशन करते हैं। We have two different types of credit rating agencies. We have international credit rating agencies, which includes Moody's International and Standards and Poor's Incorporation. ये बहुत बड़ी international credit rating agencies है और उनकी रेटिंग अगर दी गई और ट्रिपल ए अगर इनकी रेटिंग है तो बहुत जबरदस्त कंपनी है। If they say it's in default or C or double C, that means the companies are not doing good. In case of Pakistan, we have credit rating agencies which are PACRA, Pakistan Credit Rating Agency, and we have JCRVIS. You can check their website. PACRA and JCRVIS, they have a full process flow chart जिसके अंदर वो ये चीज कंसिडर करते हैं कि कंपनीज की क्या क्या चीज कंसिडर की जाती है, what is yes, what is no, और उसमें पूरा प्रोसेस फॉलो करके उनको रेटिंग दी जाती है। Now this was all about your today's lecture. Let's look at the summary कि किस तरीके से पूरे चैप्टर बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया जो चीजें रहेंगी। कल जो इससे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ बॉन्ड वैल्यूएशन, सेमी एनुअल बॉन्ड एंड हाउ वी आर गोइंग टू अर्न द रिटर्न ऑन दीज बॉन्ड्स, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू कॉल एंड current yield. Today we look at what is a bond. Bond is a long-term contract or a long-term debt instrument that is being issued by the corporation or the governments, and it is a long-term contract which promises to make certain interest payment to the bond holders. And कौन payments कौन देता है, वो जिन्होंने bonds issue किए होते हैं जो कि borrowers होते हैं। Then we have different types of bond which includes your treasury bond which is issued by the government, the corporate bond which is being issued by the corporations, we have municipal bond which is being issued by the municipal committees or the local and the state government, and then we have foreign bond which is being issued by the bond certain foreign companies or the foreign governments, and they have different default risk. And depending upon the characteristics we have two different type of bond. One is zero coupon bond which does not offer any kind of interest rate over the years, but it is being sold out at a deep discount rate. And then we have discount price, and we have a non-zero coupon bond that is a coupon bond simple that pays interest rate for a finite period of life. Then we have different characteristics of bond that includes the par value at which the bond is being issued, the maturity date that is the date at which the bond is being matured, जिस पे maturity उसकी complete हो जाती है. Then we have coupon interest rate, that is the fixed interest payment that is to be paid over the number of years for till maturity. Then we have different legal aspects of the bonds which are indenture and trustee. Indenture is a legal document which contains all the rights of the bondholders and the duties of the issuing organization. Then we have trustee. Trustee is a watchdog or any bank or an organization or any institution that make sure that all the rules and the rights and the duties mentioned in your indenture is being followed by the issuing organization. Then we have different type of bond rating, and we have international bond rating agency, bond credit rating agencies which are Moody's International and Standards and Poor's, and in case of Pakistan it is PACRA and JCRVIS. And we have different ratings, three kind of ratings for the bonds: investment grade bonds which have very high return and very low risk, and we have speculative or junk bonds which have very high risk and low return. And we have D is a rating which is given to the companies which are being default or bankrupt. This is about your today's lecture. We'll be looking at the bond valuation in our next lecture.